Hello everyone. Now let's see next cell organelle, that is ribosome. We have finished with the endomembrane system and we have seen ER, Golgi body, lysosome and vacuole. Now let's move ahead and let's see the next structure, that is your ribosomes. Ribosomes are that organelles which are present in both prokaryotic cell as well as eukaryotic cell. Ribosomes are membraneless structures. They are not bound by any membrane. We have studied the structure of ribosomes in short in your bacterial cell, structure of prokaryotic cell. Ribosomes are densely staining dense particles, small particles made up of RNA and proteins. Try to recap that part. RNA and proteins, they come together and they form the larger and the smaller subunit of ribosomes. Let's see this point in detail here in eukaryotics. First of all, ribosomes, they were discovered, they contain ribose means RNA, your ribose nucleic acid, and soma means body. So they are RNA rich bodies which contain RNA which is bound, which that RNA is intermingled with each other, RNA molecules, they are joined with each other with the help of protein molecules to form ribosome. Plus this RNA protein combination, this is not bound by any membrane, it is membraneless structure. Remember, अब तक हमने जो कुछ भी स्ट्रक्चर देखे ERGB, your vacuole and lysosome, these are single membrane bound structure, they have single covering, single membrane, but ribosome is membraneless structure, इसको एक भी membrane नहीं है. इसीलिए कभी कभी राइबोसोम्स को क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज अ सूडो सेल ऑर्गेनल, इज ऑल्सो कॉल्ड सूडो ऑर्गेनल. चुप चुप का ऑर्गेनल बोलते हैं इसको, क्योंकि इसको ऑर्गेनल बोलने जैसा ये स्ट्रक्चर भी नहीं है, इसको खुद का स्ट्रक्चर ही नहीं है. इट इज सिंपली कंपोज्ड ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, हेंस इट इज कॉल्ड अ सूडो सेल ऑर्गन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंजन ऑफ द सेल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंजन of the cell because it drives the cell by synthesizing the proteins that are required for various activities. ये protein synthesis, it is the protein factory of cell, other names protein factory of cell. Okay, hence this, since it synthesizes proteins and proteins are most important for carrying out the metabolic activities, therefore it, as it synthesizes protein, it is said to be engine of cell, it runs the cell properly. Okay, हमको लगता है engine मतलब न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस इज द कंप्यूटर ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ योर सेल. ओके, बट इंजन की बात करें so engine is your ribosome, they are called the engine of cells or protein factory of cell. ठीक है, then they are also called pallid particles, pallid particles because the scientist who discovered this in animal cell was George Palade. George Palade or Palade. So this scientist in 1953, George Palade, he discovered these ribosomes in animal cells. Hence these particles are called pallid particles. Pallid particles मतलब your ribosomes. They are also called ribonucleoprotein particles. Ribonucleoproteins means they contain ribonucleic acid and proteins, hence they are called ribonucleoprotein particles. सारे नाम एक ही है. What are the other names of ribosome? Ribosomes are also called pseudocell organelles. They are also called engine of cell or your protein factory or pallid particles. Okay. Since they are also found attached to some cell organelles, they are present within some cell organelles. They are said to be organelle within organelle. इसका एक और नाम है organelle within organelle, organelle within organelle, organelle में मिलने वाला organelle, ऐसा सेल ऑर्गेनल जो दूसरे सेल ऑर्गेनल्स में, जैसे कि we have seen the structure of ARIA, rough endoplasmic reticulum. It consists of ribosomes over its surface. Correct है, riboforeign proteins help in attachment of that ribosomes on the ARIA. मतलब क्या है, ER तो है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके ऊपर राइबोसोम्स लग गए, means they are attached to the ER. दूसरा, they are present inside the mitochondria. They are also present in chloroplast, we'll see it. They are also present in nucleus. Okay, they are freely found in floating in the cytoplasm. तो इस तरीके से वो दूसरे ऑर्गेनेल में भी मिलते, ओके, फ्रीली भी मिलते और ऑर्गेनेल के साथ भी मिलते. तो इसको इसके लिए क्या बोला है, ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल. since they are associated with other cell organelles, they are present in other cell organelles also, they are said to be
organelle within organelle. Okay, so these are the names of ribosome. Discovered by George Pallet in 1953 in animal cell, not plant cell, in animals. Then they are found in all prokaryotic cell as well as eukaryotic cell. बैक्टीरिया में भी है, प्रोकैरियोट्स में भी है राइबोसोम्स और यूकैरियोट्स में भी है. मतलब ये एक ऐसा कॉमन स्ट्रक्चर है जो दोनों सेल्स में मिलता. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो फाउंड इन बोथ. योर राइबोसोम्स आर आल्सो कॉमन स्ट्रक्चर्स. बाकी कोई स्ट्रक्चर कॉमन नहीं है दोनों में. दीज आर द टू कॉमन स्ट्रक्चर्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स. और कोई होगा हम देखेंगे, बट स्टिल टिल नाउ द टू कॉमन स्ट्रक्चर्स इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन in prokaryote as well as in eukaryote, ribosomes in prokaryote as well as in eukaryote, but they are different. Okay, तो हम देखते हो क्या है, but it is the common structure in both prokaryote and eukaryotic cells. सब में रहता है, बैक्टीरिया रहो, प्लांट रहो, एनिमल रहो, प्रोटिस्ट रहो, फंगस रहो, सभी में अपने को राइबोसोम्स मिले. क्यों? क्योंकि सभी को प्रोटीन की जरूरत है, सभी में प्रोटीन्स लगते हैं. प्रोटीन बनाने वाली एक ही मशीनरी है अपने पास, इट इज द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी. Okay, so they are found in all cells. They are absent in two cells. For example, your mature RBCs. RBCs को तो अपन ने सिर्फ दो ही चीजें दी है. RBCs are bound by plasma membrane consisting of cytoplasm. और बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट है RBC में. So mature RBCs, sieve tube cells, यहाँ पे अपने को these ribosomes are absent here. Okay. Then structurally they are consisting of only ribonucleic acid, that is your RNA, ribonucleic acid, RNA, and proteins. Therefore they are called ribonucleoproteins. They are not bound by any membrane, that is they are membraneless cell organelles, naked cell organelles, naked RNA protein particles. They are not bound by any membrane. Okay, so membraneless cell organelle. Hence this it is said to be pseudo cell organelle. हर ऑर्गेनल को खुद की कवरिंग रहनी चाहिए, ऐसा एक जनरलाइजेशन रहता, लेकिन आरएनए को खुद का सेल मेम्ब्रेन नहीं है, इसी वजह से उसको एक सूडो सेल ऑर्गेनल बोलते. असली सेल ऑर्गेनल इसको कई लोग नहीं मानते. ओके, देन दे आर मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर्स. दे आर डेंस पार्टिकल्स. आपने सेल में देखे होंगे एकदम डेंस डार्क कलर के पार्टिकल्स रहते हैं. सो दे आर डेंस पार्टिकल्स इन द सेल. Then they are of two types. In eukaryotes and prokaryotes they are of two types. Eukaryotic ribosome. First of all, two types के पहले, each ribosome is made up of two units, larger subunit and smaller subunits. RNA और प्रोटीन का ऐसा एक क्लम्प बन जाता, नेटवर्क बन जाता, एक गुच्छा तैयार हो जाएगा, ग्रुप बन के एक लार्जर सब यूनिट बन जाएगा. और उसी तरीके से थोड़े से आरएनए और थोड़े से प्रोटीन का एक स्मॉलर सब यूनिट बन जाएंगे. दो सब यूनिट इस तरीके से बने वाले रहेंगे. इसमें भी आरएनए प्रोटीन है, इसमें भी आरएनए प्रोटीन है. दोनों हमेशा जुड़े हुए नहीं रहते, ये अलग अलग रहते हैं. ओके, व्हेन देयर इज नीड ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, द टू सब यूनिट्स विल जॉइन एंड दे विल हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस. तो जो दो सब यूनिट्स हैं हर राइबोसोम में, चाहे वो यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक हो, हर एक में दो सब यूनिट्स है. पहले तो यूकैरियोटिक राइबोसोम जो रहता है 80S और प्रोकैरियोटिक 70S टाइप का है. ओके, 80S में भी क्या रहते हैं, दो सब यूनिट्स, एक लार्ज रहेगा एक स्मॉल रहेगा. वैसे ही इसमें भी एक लार्ज सब यूनिट रहेगा, एक स्मॉल सब यूनिट रहेगा. सो -20 वाला आइडिया अपना, -20 करो, दैट इज योर लार्जर सब यूनिट 60S. अगेन -20 फ्रॉम दिस 60 it will become 40S, that is your smaller sub unit. So अगर 80S की बात करूं मैं, so this is 60S and this smaller sub unit 40S. So these two will join to form your 80S type of ribosome. वैसे ही उधर क्या बनेंगे, 70 में 20 माइनस किए तो 50 और उसमें से 20 माइनस किए तो 30. So larger sub unit of prokaryotes will have 50S and 30S subunits, then both of them will join to form 70S. देखो ये दोनों टुकड़े टुकड़े में रहते राइबोसोम्स. जब ये टुकड़े जुड़ जाते तो एक कंप्लीट राइबोसोम तैयार होता. दोनों यूनिट्स को जब असेंबल कर देंगे तब एक राइबोसोम तैयार होगा, तब वो फंक्शनल प्रोटीन फैक्ट्री रहेगा. अगर ये दोनों टुकड़े अलग अलग रहे तो फिर वो प्रोटीन नहीं बना पाएंगे. क्यों, कैसे, क्या, इन सब सवालों का जवाब हमको 12th में देखना है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस उस चैप्टर में. तब मैं आपको प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस जब बताऊंगा तब आपको ये यूनियन ऑफ टू सब यूनिट्स, फॉर्मेशन ऑफ वेरियस साइट्स, अटैचमेंट ऑफ आरएनए, जो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, ये सब बातें हमको तब देखनी. अभी के लिए आपको सिर्फ स्ट्रक्चर देखना है. आरएनए इज मेड अप ऑफ टू सब यूनिट्स, larger subunit generally it is dome shaped and a smaller subunit flat disc like, and that two structures they will join to form the working ribosome.
ओके, टाइप ऑफ आरएनए समझ में आया, इसमें 80s, इसमें 70s, इसके 60-40, इसके 50-30, दो सब यूनिट्स. The union of these two subunits will occur at the time of protein synthesis, and that union will require a critical concentration of magnesium ions, Mg2+ ions. ये MCQ के लिए लिख के रख लो, कहीं भी मिलेगा. The union of or assembly of ribosomal subunits will occur only at a critical level of critical concentration of which ion? Which ion? मैग्नीशियम आयन. मैंगनीज नहीं, मैग्नीशियम आयन. एमसीक्यू में आपको Mn भी रहता है ऑप्शन में, कैल्शियम रहता है ऑप्शन में, सोडियम, पोटेशियम, कुछ भी डाल दें. हमको क्या याद रखने का है? राइबोसोमल सब यूनिट्स विल असेंबल, विल ज्वाइन ओनली एट अ क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन. एक फिक्स कॉन्सेंट्रेशन है, दैट फिक्स कॉन्सेंट्रेशन इज 0.001 concentration of your मैग्नीशियम आयन. इससे कम कॉन्सेंट्रेशन रहा अगर, तो फिर वो कॉन्सेंट्रेशन पे राइबोसोम्स ज्वाइन नहीं होंगे, सब यूनिट्स ज्वाइन नहीं होंगे. ओके, सो राइबोसोमल सब यूनिट्स विल ज्वाइन एट द क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन, मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयंस of what value? 0.001 normal molar whatever be the units, वो concentration के units लगा दो, so that at that concentration only it will join with the ribosome. Okay, so this is what requirement for the formation of complete ribosome. These are the two subunits. Okay, now let's see how much protein and how much which RNA are present here. Okay, in these two subunits, then we will see what is this S. अब आपके सामने राइबोसोम्स के जो सब यूनिट्स है उनमें कौन से आरएनए और कौन से प्रोटीन्स, कितने प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं, ये मैं आपको बात बताने वाला हूँ. दिस पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन बिकॉज वी हैव टू यूज दिस पॉइंट इन आवर क्लास 12. तो अभी से आप थोड़ा सा याद रखो, बहुत सारे इसमें नंबर्स है आपको याद रखने के हैं, तो मैं आपको वही पॉइंट बताने चाह रहा हूँ. राइबोसोम फर्स्ट ऑफ ऑल इज मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, बराबर. उसमें हर राइबोसोम में दो सब यूनिट्स रहते. यूकैरियोट्स में 80s और प्रोकैरियोट्स में 70s टाइप का राइबोसोम रहता है. एस क्या है हम अभी बाद में देखेंगे, लेकिन पहले उसके सब यूनिट्स देख लेते हैं. तो अभी आपको मैं बताया कि प्रोकैरियोटिक आरएनए राइबोसोम एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम. ओके, आपको छोटा सा साइड में फोटो आ रहा है, वही फोटो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है. तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो रहता इट इज 70s टाइप ऑफ राइबोसोम मेड अप ऑफ टू सब यूनिट्स 50 एंड 30s. हम पहले एक समझ लेते, दूसरा उसके हिसाब से आप कंपेयर कर रहे हैं. तो इसमें स्मॉल यूनिट है, स्मॉलर सब यूनिट है 30s और लार्जर सब यूनिट है 50s. सो स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट. स्मॉलर सब यूनिट इन प्रोकैरियोट्स इज 30s और लार्जर सब यूनिट इज 50s. अब हर सब यूनिट में आरएनए और प्रोटीन ही है, आरएनए और प्रोटीन है. तो आरएनए कौन से टाइप का है? इट इज आरआरएनए. आपने 10th में देखा होगा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए. मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए. ओके, तो इसमें आरआरएनए सेकंड टाइप का जो है तुम्हारा, दैट आरआरएनए इज प्रेजेंट हियर. सो आरआरएनए इज प्रेजेंट हियर. राइबोसोमल आरएनए वो कौन से टाइप का आरएनए है? इसमें 16s टाइप का. इसका वेट बहुत कम रहता है. 16s टाइप का आरआरएनए इट इज प्रेजेंट इन 30s टाइप ऑफ सब यूनिट. ओके, और इसके साथ प्रोटीन्स कितने हैं? देयर आर 21 प्रोटीन्स. ये 16s आरएनए की ऐसी लाइन रहेंगी न्यूक्लियोटाइड्स की, और उसके आजू बाजू प्रोटीन्स बैठाले रहेंगे. सो इट विल फॉर्म अ क्लम्प, अ ग्रुप ऑफ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स एंड दैट विल बिकम 30s टाइप ऑफ सब यूनिट. ओके, इसमें 16s टाइप का आरआरएनए और 21 प्रोटीन्स. वैसे 50 वाले में कितने आरआरएनए हैं? इसमें दो प्रकार के आरआरएनए, 23s और 5s. ये दो प्रकार के आरआरएनए. आरआरएनए मींस राइबोसोमल आरएनए which form राइबोसोम. तो राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाने वाले जो आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर कॉल्ड राइबोसोमल आरएनए. तो ये अलग अलग वजन के रहते हैं, इनका वेट अलग अलग रहता, इनमें अलग अलग नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, इनकी लेंथ अलग अलग रहती, साइज अलग अलग रहता. तो 16s, 23s, 5s, these are the types of rRNA. ओके, और प्रोटीन्स कितने इसमें? 34. ये बड़ा है ना, थोड़ा साइज में बड़ा है, इसमें ज्यादा आरएनए और ज्यादा प्रोटीन्स. So it will have 34 protein, 34 प्रोटीन मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे. So it will become a large molecule, larger sub. दोनों को जोड़ दो, 50, 30, combine them, you will get a complete ribosome, that is your 70s type of ribosome.
ओके, सो इस तरीके से आपको 30s सब यूनिट में कितने आरएनए कितने प्रोटीन्स है, 16s आरएनए और 21 प्रोटीन्स। वैसे 50 वाले में कितने प्रोटीन्स और कितने आरएनए, सो देयर आर 34 प्रोटीन्स एंड 2 आरएनए, 23s एंड 5s। ओके, तो ये सब जुड़ जाता है पूरा एक क्लम बन के और फिर इस तरीके से एक ग्रुप बन जाता, दैट विल बिकम योर 70s। इसमें अगर रेशियो ऑफ प्रोटीन इज टू रेशियो ऑफ योर आरएनए इज टू प्रोटीन देखें तो आरएनए 60% है और प्रोटीन 40% है। यहाँ पे आरएनए ज्यादा है बैक्टीरिया में, प्रोटीन्स कम है। ओके, 60:40 प्रोटीन्स का आरएनए इज टू प्रोटीन का रेशियो 60:40। ठीक है, अब यही कंपैरिजन तुम्हारा अगर यूकेरियोट में देखें तो यूकेरियोट में कौन से टाइप का राइबोसोम है, ATS में 2 सब यूनिट्स 60:40, 60 इज लार्जर सब यूनिट, 40s इज द स्मॉलर सब यूनिट। 60s इज पहले देखते हैं स्मॉलर सब यूनिट 40s, इट इज मेड अप ऑफ स्मॉलर सब यूनिट इज मेड अप ऑफ 40s इज मेड अप ऑफ अगेन आरएनए एंड प्रोटीन्स। तो इसमें कौन सा आरएनए, 18s, यहाँ पे 16s है, यहाँ पे 18s। इसमें 21 प्रोटीन्स है, इसमें 33, बिकॉज आवर राइबोसोम्स आर लार्जर इन साइज एज कंपेयर्ड टू बैक्टीरियल राइबोसोम्स। हमारे सेल के राइबोसोम्स बड़े रहते हैं। ठीक है, सो वी हैव लार्जर rRNA, 18s rRNA and 33 proteins which combine to form smaller subunit, that is your 40s. Similarly 60s में यहाँ पे बहुत सारे प्रकार के 3 प्रकार के rRNA हैं, 28s, 5.8s and 5s. ओके, आप बोलेंगे सर क्या चल रहा है, अरे these are not just numbers, they represent the length and the size of that RNA. ओके, क्या रहता है बता रहा हूँ अभी बाद में. So this 28s, 5.8s and 5s, these are the 3 RNAs that are rRNAs, they are present here along with 50 proteins. देखो 60s में 50 प्रोटीन्स, 40 में 33 प्रोटीन्स, 30 में 21 प्रोटीन्स और 50 में 34 प्रोटीन्स। 50 में 50 प्रोटीन्स नहीं, 50 में 34 और 60 में 50 प्रोटीन्स, 40 में 33 प्रोटीन्स और 30 में 21 प्रोटीन्स। इस तरीके से याद रखो। सो तुमको ये नंबर ऑफ प्रोटीन्स भी पूछ सकते हैं एमसीक्यू में, इनमें से कौन से किसके कंपोजिशन में क्या प्रेजेंट है। तो इसमें 16 है 30 में, इसमें 18 ऐसे, इसमें 23 और 5 है, इसमें 28, 5.8 और 5। इंग्लिश में देख लो 23, 5, 28, 5.8 and 5s. These are RNAs are present and they will form a larger subunit along with 50 proteins, that is a 60s. 60 और 40 को जोड़ दो, your 80s. क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ रहा है क्या? राइबोसोम का कंपोजिशन बता रहा हूँ, नहीं हुआ याद तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लिख के रख लो, नोट करके रख लो, अच्छे से बना के रख लो, इस तरीके से हैंड रिटन होना चाहिए तो आपको याद होगा कि किस आरएनए में कितने आरएनए और कौन से प्रोटीन्स। अल्टीमेटली इसमें अगर रेशियो देखे आपने आरएनए टू प्रोटीन का, तो यहाँ पे आरएनए कम है और प्रोटीन ज्यादा है। आरएनए 40% है और प्रोटीन 60%। यहाँ पे एग्जैक्ट अपोजिट है, आरएनए ज्यादा है 60% और प्रोटीन 40%। तो अपने और इसमें अगर यूकैरियोटिक आरएनए में राइबोसोम में कंपैरिजन अगर आपको देखा तो आपको दिखेगा कि इसमें आरएनए ज्यादा है 60%, आधे से ज्यादा आरएनए है और आधे से कम प्रोटीन से। लेकिन इधर अपनी बात अगर किए यूकैरियोट्स की तो प्रोटीन 60% है, आधे से ज्यादा प्रोटीन से और उसमें आरएनए कम है। ठीक है, सो लाइक दिस योर 2 सब यूनिट्स आर फॉर्म्ड, 2 टाइप्स ऑफ आरएनएस आर प्रोड्यूस्ड. Okay, they will join under the critical concentration of your magnesium ion Mg2 plus. For example, your 0.001 molar, 0.001 molar ये MCQ मिलेगा 0.001, 0.0001, 0.1 ऐसे कुछ भी ऑप्शन रहेंगे तो आपको 0.001 मोलार कॉन्सेंट्रेशन, इससे अगर कम कॉन्सेंट्रेशन रहा तो ये दोनों की ज्वाइनिंग होंगी नहीं, इससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहा तो ज्वाइनिंग हो जाएंगी, लेकिन इससे कम अगर मैग्नीशियम रहा इतने कॉन्सेंट्रेशन से लेस देन दिस, सो द कॉम्बिनेशन विल नॉट ऑकर, 2 सब यूनिट्स विल नॉट ज्वाइन टू फॉर्म कंप्लीट राइबोसोम. ओके, सो दिस इज अबाउट योर राइबोसोम. नाउ व्हाट इज एस इन दिस ऑल डिस्कशन? एस क्या है, इतनी देर से बोल रहा हूं, ये समझ गया होगा तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अभी आप पॉज करके देख लो एक बार फिर से और आगे बढ़ते हैं हम. एस क्या है? एस इज द स्वेडबर्ग यूनिट. एस इज द स्वेडबर्ग यूनिट. एस स्टैंड्स फॉर स्वेडबर्ग यूनिट. इट इज यूज्ड टू मेजर सेडिमेंटेशन रेट. It is used to measure sedimentation rate of small sized particles
इन सेंट्रीफ्यूगेशन और सेंट्रीफ्यूगी मशीन। व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगी मशीन, व्हाट इज स्वेडबर्ग यूनिट, व्हाट इज एस, यही बता रहा हूं आपको। तो आपके सामने सेंट्रीफ्यूगी मशीन की फोटो आ रही है, आपने कहीं सुना होगा, देखा भी होगा, फिजिक्स में आपको आया भी होगा। सो सेंट्रीफ्यूगी नाम की एक मशीन रहती, एक राउंड ऐसी एक मशीन रहेगी, उसके बीच में एक मोटर लगा रहेंगी नीचे से, जैसे कि मिक्सर को तुम्हारे रहती नीचे, तो वैसे एक बर्तन रहेगा पूरा गोल, ओके, बीच में से उसमें मोटर का ऐसा इस तरीके से रॉड बाहर ऊपर आया रहेगा। रॉड को इस तरीके से आप जैसे देख रहे हो, उसको हॉरिजॉन्टल रॉड्स अटैच है एट इक्विडिस्टेंट एंगल्स, और उनके पास में टेस्ट ट्यूब होल्डर्स लगे वाले। उन टेस्ट ट्यूब होल्डर्स में हम टेस्ट ट्यूब्स भर के रखते। टेस्ट ट्यूब्स में हम कोई भी लिक्विड डालेंगे जिसमें कुछ भी कचरा है, जो भी पार्टिकल्स है, उनको हम अलग करने के लिए इधर से एक टेस्ट ट्यूब, उसके पैरेलल सेम एंगल पे इधर एक टेस्ट ट्यूब, इधर एक, इस तरीके से हम पैरेलली रखेंगे टेस्ट ट्यूब्स को। और फिर बाद में जो नीचे वो रॉड है, रॉड मोटर को कनेक्टेड है, मोटर इलेक्ट्रिसिटी से चलती, इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर दो, वो मोटर जब घूमेंगी, मोटर का रोटेशन होगा तो उसकी वजह से वो रॉड घूमेगा, रॉड घूमने की वजह से ये जो तुम्हारे टेस्ट ट्यूब्स है ये भी रोटेट करेंगे, जस्ट लाइक योर फैन। फैन को इन्वर्टेड इमेजिन करो, फैन के ब्लेड्स कैसे घूमते, तो ये टेस्ट ट्यूब्स भी घूमते। टेस्ट ट्यूब्स जब घूमेंगी तो टेस्ट ट्यूब तो रखते टाइम स्ट्रेट रहती, लेकिन घूमने के टाइम पे वो इस तरीके से पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि दूर फेंके जाएंगी ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। Centrifugal force away from the center, which acts away from the center axis of rotation, so that force is centrifugal force, वो दूर फेंके जाएंगे और टेस्ट ट्यूब्स रोटेट होंगे। प्लस इसकी वजह से क्या होगा, वजन जो चीजें हेवी रहेंगी वो फोर्स की वजह से दूर की तरफ फेंके जाएंगी, सेंटर से दूर फेंके जाएंगी, तो सबसे हेवी पार्टिकल सबसे बेस पे जमा हो जाएंगे टेस्ट ट्यूब के। जो टेस्ट ट्यूब का बेस रहेगा, ये सेंट्रल रॉड है, यहाँ पे तुम्हारा इधर टेस्ट ट्यूब होल्डर है, इसमें टेस्ट ट्यूब जब घूमेंगे, सो दिस इज द टेस्ट ट्यूब, ओके। टेस्ट ट्यूब को पैक कर देते पूरी तरह से, नहीं तो इसमें से बाहर गिर जाएगा लिक्विड। तो जो लिक्विड रहेगा जब ये रोटेट होगा, तो लिक्विड में के सबसे हेवी पार्टिकल्स यहाँ पे बेस पे जमा होंगे, ओके, उनसे लाइट वाले यहाँ पे, उनसे लाइट वाले, उनसे लाइट वाले, तो इस तरीके से सबसे हेवी पार्टिकल सबसे नीचे और उनसे कम वेट वाले और छोटे छोटे साइज के ऊपर की तरफ सेडिमेंट होंगे। सेडिमेंट होना मतलब डिपॉजिट होना, नीचे बैठना, तल को जाकर बैठ जाएंगे, बॉटम पर आके जमा हो जाएंगे। तो इनमें जो सबसे हेवी पार्टिकल है वो जल्दी फेंके जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगा वेट ज्यादा रहने से, और वो जल्दी डिपॉजिट हो जाएंगे। लेकिन जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको अपने को बहुत टाइम लगता, अलग अलग टाइम पे वो फिर डिपॉजिट होते, अलग अलग टाइम पे उनका रेट, वहां पे बैंड्स तैयार होते, इस तरीके से उनका पूरा ग्रुप तैयार होता और हमको एक बैंड के जैसे दिखाई देते। तो ये जो S है, ये S मतलब ये स्वेडबर्ग यूनिट है। इट इज द सेडिमेंटेशन रेट, इट इज द टाइम एंड द रोटेशन एट विच, इट इज द टाइम, कितना टाइम लगेगा, कितने रोटेशन देना पड़ेंगे, एट विच द पार्टिकल्स आर सेडिमेंटेड, वो पार्टिकल नीचे बैठेंगे और हमको दिखाई देंगे। फिर तो हम जब 60S की बात, 30S की बात करूं तो ये 30 स्वेडबर्ग यूनिट पर ये डिपॉजिट होगा नीचे। जब मैं सेल्स को निकालूंगा अपनी बॉडी में से, सेल्स का सॉल्यूशन तैयार करूंगा, सेल्स में जब मुझे ये 30S सब यूनिट अलग करने के, तो मुझे 30S की स्पीड पे इसको घुमाना पड़ेगा, 30S की स्पीड पे। तो वो स्पीड कितनी रहेगी, एक स्वेडबर्ग यूनिट जो रहेगा, द वैल्यू ऑफ 1 स्वेडबर्ग यूनिट इज इक्वल टू 10⁻13 सेकेंड्स। वैल्यू ऑफ 1S इज इक्वल टू 10⁻13 सेकेंड्स, मतलब 0.00000000 ऐसा जाके 1 ऐसा 13 तक जाने का, और 1 लास्ट में 13 नंबर पे 1 रहेगा। इतने स्लो टाइम में, एक सेकंड का कितना हिस्सा है, -13 पार्ट है, वो 10⁻13 पार्ट है। इतने कम टाइम पे, इतने इस पे जाके एक S का जो मॉलिक्यूल रहेगा साइज का, इतना छोटा मॉलिक्यूल, वो ये टाइम पे डिपॉजिट, ऐसा 30 इंटू 30 करो, तो उतने टाइम के बाद तुम्हारा स्मॉल 30S वाला डिपॉजिट हो जाएगा, 16S वाला आयरन डिपॉजिट हो जाएगा, इंटू 16 करे तो 50S वाला। मतलब कितने स्पीड पे कितनी बार घुमाए तो कौन सा मॉलिक्यूल कब डिपॉजिट होगा। 80 वाला ज्यादा टाइम पे डिपॉजिट होगा, ज्यादा 80 लार्जर मॉलिक्यूल है, ओके। तो इस तरीके से तुम्हारे मॉलिक्यूल्स के डिपॉजिशन कितनी स्पीड पे होता, किस टाइम पर होता, उसके हिसाब से फिर उसको बोलते हैं वो मॉलिक्यूल का स्वेडबर्ग यूनिट, जैसे कि 30S, 40S, 50S, 60S। अब ये स्वेडबर्ग कौन है, ही डिस्कवर्ड योर सेंट्रीफ्यूगी मशीन, ये जो मशीन में बताया, दिस मशीन वाज डिस्कवर्ड बाय दिस स्वेडबर्ग, हेंस दिस इन हिज ऑनर द यूनिट इज द स्वेडबर्ग यूनिट,
It measures the sedimentation rate at which the particle sediments down, deposits down at a given time. One Swedberg unit has a value of 10 raised to minus 13 seconds. अब ये प्रैक्टिकल नॉलेज की बात है तो इसको आप ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एट दिस लेवल दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, बट आपको सिर्फ समझना पड़ेगा, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा. 1s is equal to 10 raised to minus seconds and so it represents Swedberg unit. What is the use? It is used to measure the rate of sedimentation of small sized particles in centrifugal machine. Centrifugal machine was discovered by Swedberg. ओके, तो राइबोसोम में हमने जो एस देखे सभी एस वो स्वेडबर्ग यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंड को नहीं करते, टाइम नहीं मेजर करते. इट इज अ टाइम, अ काइंड ऑफ टाइम, बट रोटेशन भी उसमें काउंट करना पड़ता है. ओके, then last point about ribosome is your functions of ribosome. So ribosomes are the protein factories of cell. They synthesize proteins. One and only function, they synthesize proteins. They are found in association with various cell organelles and they synthesize proteins, and that proteins are converted into various enzymes, lipoproteins, glycoproteins in ER, Golgi body. We have seen that part. Okay, so ribosomes ka one and only function, they are involved in the formation of proteins. They are the protein factories of cell. Okay, so this is all about your ribosomes. आपको इसी में से MCQs मिलेंगे, सभी बातें अच्छे से रिवाइज कर लो. एंड हियर वी आर डन विद द राइबोसोम्स. विल कंटिन्यू विद द double membrane structure. The cell organelles having two membranes, your mitochondria and chloroplast, most important one in our next lecture.